उसका 10वां बाब और उसकी 34वीं आयत मैं दोबारा आपसे नहीं करूँगा। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्कुस लिखी गई इंजील 10वां बाब इसकी 34वीं आयत लिखा है, ये ना समझो कि मैं ज़मीन पर सुलह कराने आया, सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलवाने आया। आइए दुआ करें। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि आज बड़ी देर के बाद आप लोगों के साथ इसी इबादत में शरीक होने का मौका मिला है। खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि हमने इसकी हमद और इसकी तारीफ और अब वक्त मिला है कि हम वक्त के लिए थोड़ी देर के लिए खुदा के हम इन बातों को सीख सकते। 10वें बाब की 34वीं आयत जो है, आज हम इसको अपने लिए सनदी या मरकजी आयत के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ मैं चाहता हूँ कि अगर आपके पास बाइबल है तो देखें, यहाँ लिखा है कि ये ना समझो कि मैं ज़मीन पर सुलह कराने आया, बल्कि सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलवाने। मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील जो है, तो क्वेश्चन है क्या इंजील है? इससे पहले मरकस की इंजील लिखी गई और मरकस की इंजील जो है उसको मुकद्दस मत्ती ने और लूका ने जब उन्होंने लिखी है तो सोर्स के तौर पर या मास्टर के तौर पर इस्तेमाल किया। मुकद्दस मत्ती जो थे अपने माँ बाप ने इनका नाम लावी रखा था, लेकिन जब खुदावंद यीशु ने इसको अपनी शागिर्दियत में बनाया तो फिर इसका नाम उन्होंने बदल दिया और इसका नाम उन्होंने मत्ती या मत्तिया या मत्तिया रख दिया। इसका मतलब है खुदा की या यहोवा की बख्शिश। और फिर जब उसने खुदावंद को कबूल किया और खुदावंद के पीछे चल पड़ा तो फिर जिंदगी की आखिरी सांस तक ये खुदावंद के साथ था। इसकी इंजील के कुल 28 अबवाब है और ये जो 28 अबवाब है उसके खुदा के कलाम के तालिब इल्म 3 मकसद या मकासद बताते हैं। लेकिन अगर एक तालिब इल्म की हैसियत से देखा जाए, एक ही मकसद और वो मकसद ये है कि यीशु मसीह को यहूदियों, यूनानियों, फरीकियों, सामरियों, तमाम मज़ाहब या बरीना इंसान के सामने बतौर निजात खुदा पेश किया। और फरिश्ता भी जब यूसुफ के पास आया तो उसने उससे कहा था कि बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने अंदर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो उसकी कुदरत से है। उसका बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से बचाएगा। तो मुकद्दस मत्ती मसीह यीशु को निजात जिंदा के तौर पर पेश करते, लेकिन उस निजात जिंदा के साथ वो जो
صفت لگاتے ہیں، یہ ایڈجیکٹو جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مسیح یسوع خدا کی بخشش ہے، اس لیے نجات ملتا ہے۔ اگر وہ بخشا نہ جاتا یا وہ ہمیں دیا نہ جاتا تو پھر ہماری نجات مشکل رہی، ناممکن۔ تو وہ مسیح یسوع کو نجات دہندہ اور بخشش کے طور پر پیش کرتا ہے۔ جب ہم متی کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ پوری انجیل جو ہے یہ 5 وعدوں پر مشتمل ہے، 5 وعدوں پر مشتمل ہے۔ پہلا وعد جو ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، متی کے انجیل کا 5واں اور 6واں 18واں وعد، جسے ہم مسیحی بچپن سے روز سے ہم نے پہاڑی وعد کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور جب وہ متی کے انجیل کا 5واں وعد شروع ہوتا ہے تو وہاں لکھا ہے کہ اور وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ کے جب بیٹھ گئے تو پھر اس کے شاگرد اس کے پاس آئے اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو ضرور تعلیم دیتے ہیں۔ یعنی خداوند یسوع نے جب بھی تعلیم دی ہے ان 5 وعدوں میں، اگر آپ کبھی جو میں بتاؤں گا لکھ لیں اور یاد کر لیں تو پھر ان کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب بھی بات کی انہوں نے شاگردوں سے بات کی پبلک بھلے جتنی بھی بھیڑ کو دیکھا، پہاڑ پر چڑھ گئے اور جب بیٹھ گئے تو کیا لکھا ہے؟ شاگرد پاس آئے۔ شاگرد ہر بندہ، ہر مسیحی، ہر ایماندار ہو سکتا ہے، شاگرد نہیں ہو سکتا۔ شاگرد ہونا ایک دوسری بات ہے۔ میں نے جب بھی کبھی کسی جگہ انٹرویو دیا اور مجھے کال لیٹر آیا تو آج بھی میرے پاس کال لیٹر پڑے ہیں میری فائل میں، ان کے اینڈ میں جس نے بھی مجھے داخلہ دیا اپنے انسٹیٹیوٹ میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، اس کی آخری لائن آج تک مجھے یاد ہے۔ انہوں نے لکھا کہ ڈو کم، ضرور آئیں، ہم نے آپ کو داخلہ دے دیا ہے، آپ کو ایڈمیشن مل گیا ہے، ڈو کم، لیکن آگے لکھا ہے کم ود ٹیچیبل ایٹیٹیوڈ، کہ سیکھنے والی روح کے ساتھ آ رہا ہے۔ کلام سنانا، واز کرنا، دعائیں کرنا، گیت گانا، پرستش کرنا، یہ ساری باتیں الگ ہیں، شاگرد ہونا الگ ہے۔ یہ ساری صفتیں جو ہیں، اچھا دعا گو، ایماندار، یہ ساری صفتیں شاگرد بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ساری صفتیں رکھنے والے شخص شاگرد نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھیں۔ کیونکہ شاگرد ہونے کے لیے بندے کو یہ بات ضروری ہے کہ اس کے پاس ٹیچیبل ایٹیٹیوڈ یا سیکھنے والی روح ہے۔ میں صبح بھی شام بھی جب دعا کرتا ہوں میں خدا کے پاس روح کو جب مانگتا ہوں، اس کی نعمتوں کو مانگتا ہوں، اس کی برکتوں کو مانگتا ہوں، تو میں ضرور کہتا ہوں کہ خداوند مجھے سیکھنے والی روح دے، ایک ٹیچیبل ایٹیٹیوڈ دے دے، خدا کے کلام کو انڈرسٹینڈ کرنے والی انڈرسٹینڈیبلٹی کی روح دے دے۔ میں جتنی کو باتیں مانگتا ہوں اور پھر خدا مجھے دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ 5واں باب، 6واں اور 7واں باب، یہ پہلا باب ہے۔ دوسرا باب
10वां बाब है जिसका अभी आपने मुताला किया। तीसरा बाब 13वां बाब है और चौथा बाब 18वां बाब है और 5वां बाब 24वीं और 25वां बाब है। दो अबवाब। हमारा हवाला जो है वो दूसरे बाब से, यानी दूसरे बाब में से है जो 10वें बाब में। और ये जो बाब है ये भी शायद अगर आप जब पढ़ेंगे इस बात को 10वें बाब को शुरू से, तो उसने शागिर्दों को बाकायदा उससे चुना। 200 में से 70 चुने, 70 में से फिर 12 चुने, और जब 12 चुन लिए तो फिर उनसे बात की, हालांकि भीड़ भी थी वहाँ। लेकिन बात वो किनसे कर रहा है? शागिर्द, जिनको उसने चुन लिया है भीड़ में से, दुनिया में से, 70 में से, 200 में से, सारी दुनिया में से खुदा ने उन 12 लोगों को चुन लिया। और वो उन 12 को चुनने के बाद जब आप इस हवाले को पढ़ेंगे, फिर उनको तालीम दी है, तालीम के बाद उन्हें बरकत दी है और उन्हें कहा है कि तुम ये मेरे नाम से करो। अब सवाल ये है, जैसे मैंने पहले बताया, कि ये हर बंदे से ये बात नहीं। ये बात किससे है? नंबर 1, सबसे पहले जो सीखने की रूह रखता है और शागिर्द होने का दावत। ये आयत, ये हवाला इन लोगों से है जो ये कहते हैं कि हमने नई पैदाइश का तजुर्बा हासिल कर लिया, जो ये कहते हैं कि हमें पाकू इनाम में मिल गया है, अब हम दोनों पुछके खा रहे हैं। जो ये कहते हैं कि अब हम ये है, बड़ी बड़ी सारी बातें लोग करते हैं। मैं उसकी तफसील या डिटेल में नहीं, लेकिन बुनियादी बात ये है कि ये बात उनसे है जो सीखने की रूह रखते हैं, और जो सीखने की रूह रखते हैं उसका तरीकाकार क्या है, कैसे मैं और आप ये सीख सकते हैं कि हमें सीखने की रूह, या हम दूसरों को सिखा सकते हैं। जब हम दावा करते हैं तो कैसे दूसरों तक, आप पादरी हैं, बिशप हैं, एल्डर हैं, कुछ भी है, सबसे पहला काम जो लाहे अमल या स्ट्रेटजी वो ये है कि लोगों को खुदावंद के लिए ही, अपने चंदे के लिए नहीं, अपनी कलीसिया बढ़ाने के लिए नहीं, अपने ब्रेड एंड बटर के लिए नहीं, लोगों को खुदावंद के लिए भी, ताकि वो आपको नहीं, आपके खुदावंद को जाने। कुछ लोग शागिर्दों के पास आए, लूका के इंजील में है कि उन्होंने कहा हम यीशु को देखना चाहते हैं। उन्होंने यीशु को दिखा दिया कि ये यीशु है। फिर उन्होंने जाकर काहिनों को बताया कि हमने अपनी आंखों से देख लिया कि वो कौन है, और वो जो कलाम करता है वो इंसान के बस में नहीं है। वजह क्या है? तो वो लोग मसीह यीशु के पास जब आए तो मसीह यीशु के वसीले उनकी रूहों को, उनके बदनों को, जानों को खुदावंद यीशु ने हमारी रोज की
जो गुफ्तगू है उसके नतीजे पे टर्मिनोलॉजी में यीशु ने उनको यीशु के लिए दिया, विन, उन्होंने उसको जीता, विन किया। फिर यीशु ने 3 साल तक शागिर्दों को जो 3.5 साल के अपने साथ रखा। जरूरत क्या थी? वो तो ऐसे फूंक मारेगा तो वो रूह उससे भर जाएगा। जब वो रूह उससे भर जाएंगे तो फिर सारे काम करेंगे। और उसने 3.5 साल क्यों साथ रखा? ताकि उनको बिल्ड करे, मजबूत करे, बनाए। आज बेशुमार लोग हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, बड़ा कलाम सुनाते हैं, बड़े गीत गाते हैं, बड़ी दुआएं करते हैं, लेकिन उनका खुदा के कलाम में ताबीर होना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद पहले जीतना है, फिर क्या है? उन्हें ताबीर करना है, फिर उन्हें तरबियत देनी। हम तरबियत पहले देते हैं, बाकी काम हम बाद में करते हैं या नहीं करते हैं, वो बात की बात है। फिर तरबियत देनी। और फिर उसने शागिर्दों को कहा भी तो जब मैं आसमान पर उठाया जाऊंगा तो मुझसे भी बड़े बड़े काम करूंगा, क्योंकि वो तरबियत याफ्ता हो। पहले जीतना है, फिर ताबीर करना है, फिर क्या करना है? उन्हें तरबियत या ट्रेनिंग देनी है। मैंने भी सर्टिफिकेशन दे दिया सर्टिफिकेट। कोई उनमें से एक बंदा ऐसा नहीं जो मुझे चर्च का बहुत नाम सुना। हालांकि 2, 3, 4 साल से मेरे साथ एक भी बंदा ऐसा नहीं जो मुझे 66 किताबों के नाम जुबानी सुनाए। ये कोई तरबियत नहीं। पहले क्या है? खुदावंद में जीतना। फिर क्या है? खुदावंद में उन्हें ताबीर करना है, जैसे आप दीवार ताबीर करते हैं, घर ताबीर करते हैं। फिर उसे तरबियत देनी। फिर हम कहते हैं ये ड्राइंग रूम है, ये डाइनिंग रूम है, ये हमारा बेडरूम है, ये फ्ला है, ये फ्ला है। ये बात की बात है। और फिर आखिरी बात है जो हम पहले करते हैं कि सर्टिफिकेट दे दें। मुझे कई लोगों ने मेरे पास आकर कहा कि जी सर्टिफिकेट दे दें, मैंने नहीं दिया। अभी भी जिनको दिया है उनमें से किसी की भी ना हाजिरियाँ हैं, किसी की 2 महीने हाजिरियाँ हैं, किसी की पूरी हाजिरियाँ हैं, किसी की उन्होंने अपनी फीस दी है या नहीं दी है। पर क्योंकि मैंने अपना फर्ज पूरा करना था, मैंने कर दिया। मैंने उस स्टैंडर्ड को सबने नहीं रखा, उसको भूल गया। और आखिरी बात ये है कि पहले उन्हें मसीह में जीते, फिर उन्हें मसीह में तामीर करें, फिर उन्हें तरबियत दें और फिर उन्हें भेजें, जाओ जाकर सब कौमों को शिक्षा। आपको याद है, आप तीनों को याद है, 2 तिमोथियुस 2 बाब 2 आयत। मैंने पिछले 2-3 साल से कह रहा हूँ कि मुझे कुछ सुना दे, जुबानी सुना दे। और ये बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने सुनी है, उनको ऐसे जानदार आदमियों के सुपुर्द कर जो औरों को सिखाने के काबिल किसी ने नहीं सिखाया। फिर उन्हें भेजना। उसकी वजह ये है कि खुदावंद ने कहा मैं तलवार चलवाने आया, चलानी नहीं है उसने। चलवानी है किन से? जिनको वो तरबियत दे। तलवार आप खरीद कर जितनी मर्जी रख ले, टीपू सुल्तान की तलवार मिलती बोल मेरे, ऐसी कौन सी बात है? पर चलानी आएगी तो बोले। बात तो ये है कि उसकी तरबियत भी है आपको कि नहीं।
कलाम खाने को सामने बैठकर बिल्कुल तो खड़े होकर लंबी बाहें करके लोगों के सामने घूम फिर के हाथ में लेके अपना वो सब कुछ, तो लोगों को सुना, ये तो सारों को शौक है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो तलवार चलाने का फन जानते हैं या नहीं जानते? क्योंकि वो चलवाता है, चलाता नहीं है। इब्रानियों के सहीफे में लिखा है कि खुदा का कलाम जो है वो दो धारी तलवार से ज़्यादा तेज, चौथा बाब है, और वहाँ लिखा है कि वो दो धारी तलवार से ज़्यादा तेज। क्योंकि वो दो धारी तलवार से ज़्यादा तेज है, तो मुझे किसी ने पूछा था एक सवाल कि ये जो दो धारी तलवार है, मैंने शायद क्लास में आपको बताया था, मुझे सवाल कहीं से आया था कि जी तलवार तो एक धार की होती है, खुदा का कलाम दो धारी तलवार कैसे? तो आपको याद होगा मैंने बताया था, एक धार उसका अहद अतीक है, दूसरी धार उसकी अहद जदीद। अहद अतीक की धार जो है वो इंसान की जिस्मानी जिंदगी को काटती, उसको दुरुस्त करती, और अहद जदीद की तलवार जो है वो इंसान की रूहानी जिंदगी को बदियों से काट कर फिर उसे ताबीर। और ये भी लिखा है कि खुदा का कलाम मुअस्सर भी है, असर करता है, जिंदा भी है। उसके लिए बहुत सारे नाम इस्तेमाल किए जाते हैं कि खुदा का कलाम क्या है, क्या नहीं है। खुदा के कलाम के लिए सबसे पहली बात जो इब्रानियों में मैंने आपको बताई वो ये है कि वो दो धारी है। और यूहन्ना अपने इंजील के पहले बाब में लिखता है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था। और दूसरी आयत में लिखा है सब चीज़ें उसके वसीले से पैदा हुई। मिर्ज़ा गालिब का एक शेर है कि कुछ ना था तो खुदा था, कुछ ना था तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। अब ये वो अपनी जात की बात नहीं कर रहा, ये याद है, वो बात होने की कर रहा है। तो खुदावंद ने कहा हो जा, वो तो बात की बात है कि पता चला कि क्या हो गया। सबसे पहले उसने, आज सबको पता है कि रोशनी को तारीकी से जुदा किया। मुंह से क्या कहा? रोशनी हो जा। यदि कलाम की तलवार जब चली तो फिर तारीकी से रोशनी जुदा हो गई। क्यों रोशनी जुदा हो गई? उसकी साइंटिफिक बहुत सारी वजूहात है, लेकिन एक वजह ये है कि लाइट इज द सोर्स ऑफ लाइट। ये साइंस ने साबित कर दिया है, मेडिकल साइंस ने। उसने सबसे पहले अपने कलमे से, किसके वसीले? मसीह यीशु के वसीले, क्योंकि वो कलमा है, वो खुदा का कलाम। उसने उस कलमे के वसीले सबसे पहले रोशनी को तारीकी से अलग किया। पहले तलवार वहाँ चली और रोशनी तारीकी से जुदा हो गई। फिर उसके बाद उसने सारी तकलीफ उसी होने से कर दी, सुवाए आदम, सुवाए आदम। इसका मतलब उसने अबतरी को, तारीकी को
بے ترتیبی کو، جب کچھ نہیں تھا تو اپنے منہ کے کلام سے اسے شکل اور صورت بخشی، اور پھر آپ نے کہا اچھا یہ پہاڑ ہے، یہ سمندر ہے، یہ پھل ہے، یہ پھول ہے، پھر ان کو ترتیب سے لکھتا چلا گیا۔ لیکن تلوار کون سی چلی؟ اس کا کلام کون سا؟ جو اس کی زبان سے نکلا، خدا نے کہا ہو جائے۔ اور یہ نام جو ہے ہو جا، آپ کو یاد ہے یہ خدا نے خود بتایا تھا، کسی کو یاد ہے کہاں ہوگا یہ؟ موسیٰ کو خدا نے کہا کہ تو ایسے کر مصر چلا گیا۔ اب موسیٰ تو وہاں سے بھاگ کے آیا، بندہ بھی مار کے آیا کہ فرعون کو بھی بیٹی کو دھوکہ بھی دے کے آیا، انہوں کا مال کھانا گیا تو دوڑ کے ایک مصری کو مار کے آ گیا۔ پھر 40 سال تک بھیڑا جا گیا، 80 سال کا سی جب خدا نے اس سے بات کی، انہیں انہیں کو بانے مارے، انہیں کو بانے مارے، ذرا کچھ صاحب الٹیمیٹلی انہوں نے کیا کہ تو میرے پرا نکال دے قانون، خدا نہیں مانا تو نے کہا پھر میں آخری گل ہے تو میں کیا جا کے کہوں گا، مجھے کس نے بھیجا ہے؟ کیونکہ فرعون کے لوگ جو ہیں یا وہ سارے تو دیوتاؤں کو مانتے ہیں اور دیوتاؤں کے نام ہیں، وہ جو 10 ہفتے آئی ہیں وہ 10 دیوتا ہیں، تو میں کیا کہوں گا کس نے بھیجا؟ تو اس نے کہا اچھا تو جا کے تو ان سے کہنا مجھے جس نے بھیجا ہے، اردو میں لکھا ہے خروج کی کتاب میں کہ مجھے جس نے بھیجا ہے وہ اس کا ترجمہ اردو میں یہ ہے کہ میں جو ہوں وہ میں ہوں، میں جو ہوں سو میں ہوں۔ عبرانی کا ایک ہی لفظ ہے جس کا یہ ترجمہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب انہوں نے ترجمہ کیا ہے بڑی خوبصورت بات ہوتی ہے، کیونکہ جو ہے اردو گرامر میں یہ محمل ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ استانی جی بھی بیٹھے، جو کا کوئی معنی نہیں ہوتا، یہ محمل ہے، پتا آپ کو؟ نہیں، جو کا کوئی معنی نہیں ہوتا، یہ محمل ہے اردو کے گرامر میں، اور سو کا بھی کوئی معنی نہیں ہوتا، یہ بھی محمل ہے۔ ہم تو انگریزی میں لکھتے ہیں سو دیئر فور، اب سو لکھنا انگریزی میں ٹوٹلی زیرو ہے، غلط ہے۔ سو کائنڈلی گرانٹ می، وہاں سو انگریزی کا لفظ ہی نہیں، تو ضروری ہے کہ وہاں لکھا جائے دیئر فور گرانٹ می لیو فار ون ڈے، یا جو بھی۔ سو کا کسی سے کوئی تعلق نہیں، سو اردو زبان کا لفظ ہے اور ہم انگریزی میں ڈالتے ہیں اور معنی اس کا ہے کوئی، وہ محمل ہے، کیونکہ جو نکال دے تو میں جو ہوں کیا بنے گا؟ جو نکال دیا کیا بنا؟ میں ہوں۔ سو نکال دیا پھر کیا بنا؟ میں ہوں۔ تو بیسیکلی کیا ہے؟ ہوں، وہ ہوں جس کے وسیلے خدا نے دنیا کو تخلیق کی، اور یسوع نے تقریباً 10 دفعہ کہا نور میں ہوں، آب حیات میں ہوں، زندگی کی روٹی میں ہوں، اچھا چرواہا میں ہوں۔ یسوع نے 8ویں 9ویں 10ویں باب میں 3 بار کہا دنیا کا نور میں ہوں، آدمیوں کا نور میں ہوں، اور زندگی کا نور میں ہوں۔ دنیا کا، آدمیوں کا، زندگی کیا ہے؟ میں ہوں۔ تو یہ جو میں ہوں یہ کیا ہے؟ یہ خدا کا کلمہ ہے،
اور یہ کلمہ ہی تکلیف کرتا ہے. لیکن دیکھو جب یسوع کے پاس آیا تو اس نے کہا جب تک تو نئے سرے سے پیدا نہ ہو. اب وہ یسوع کا مذاق اڑا رہا ہے. میں دوبارہ اس عمر میں ماں کی کوکھ میں جاؤں. اب وہ یسوع کا مذاق اڑا رہا ہے. یسوع نے اسے کہا تو شرع کا عالم ہو کر یہ بات نہیں سمجھتا. اور کیا سمجھنا ہے اسے؟ سمجھنا یہ ہے کہ اس کے اندر جو انسانی تخم ہے جب تک وہ تخم اس میں سے جدا نہیں ہوگا وہ نئے سرے سے پیدا نہیں ہو سکتا. جب تک انسانی تخم جدا نہیں ہوگا وہ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوگا. اسی لیے پہلا پطرس پہلا باب اور اس کی 21ویں 22ویں آیت میں لکھا ہے اور اے بھائیو تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی تخم سے یعنی خدا کے کلام سے پیدا ہوئے جس میں انسانی تخم ہے وہ 1000 سال کا بھی ہو جائے وہ کبھی خدا کا شاگرد نہیں ہو سکتا نہ خادم ہو سکتا ہے. کتاباں لکھنے کو کیا کتاباں بولے سے پڑھ جائیں کیا جڑا یسوع نے جانتا ہے. بات کرنے کی کون سی بات ہے؟ سیاسی لیڈر بڑے اچھے اچھے بات کرتے ہیں. کلاسز میں ٹیچرز بہت اچھا اس طریقے سے سکھاتے ہیں. ہم بھی بڑے اچھے اچھے بات کرتے ہیں. لیکن جس کو خدا کے کلام نے کاٹ کر اس کے اندر کلام کا تخم نہیں رکھا وہ نئے سرے سے پیدا ہی نہیں ہوا. اور جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوا وہ تقریریں ضرور کر سکتا ہے پر کسی روح کو خدا کے لیے نہیں جی سکتا. کسی جان کو کسی انسان کو خداوند کے لیے نہیں جی سکتا. یہی ہے کہ میں تمہارے وسیلے سے تلوار چلوانے یہ کام میرا ہو رہا ہے. یہ کام میرا اور آپ کا کیونکہ ہم اس کے ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. اور ایماندار ہونے کا جو دعویٰ کرتے ہیں خدا کے پاس کلام میں لکھا ہے پہلا یوحنا 5واں باب وہاں لکھا ہے جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے 10ویں آیت میں جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے. اب گواہی یہ ہے کہ خدا کے کلام نے آپ کی زندگی میں کیا کیا ہے. میرے والد صاحب خدا کی خدمت کرتے تھے ماشاء اللہ. میری ماں خدا کی خاتمہ کی دونوں سنگری گریجویٹ. میرے والد صاحب ہندو تھے. نوگا ہائی اسکول ہے ہندوستان میں قدر فیروز پور کے قدر اس علاقے پہ کہیں. میرے ابا جی وہاں پڑھتے تھے اور کٹر ہندو کے براہمن تھے. بڑے پودی والے ہوتے وہ براہمن تھے. ان کے اسکول میں سادھو سندر سنگھ آئے. سادھو سندر سنگھ نے وہاں عبادت لی کلام سنایا. میرے والد صاحب نے فقیر چند نے میرے والد کا نام فقیر چند تھا. اس کی زندگی میں خدا کے کلام کی تلوار سادھو سندر سنگھ کے وسیلے چلوائی اور اسی رات میرے ابا جی خوشی بھی ہو گئے. مشنریوں نے ان کو پکڑ کے چھپا لیا کیونکہ وہ بڑے رئیس اور بڑے مل مالک تھے. ان کے گھر والے ان کو قتل کرتے رہے. وہاں سے
कह लें यहाँ जैसे हैदराबाद है, कि हैदराबाद से थोड़ा करीब लड़कियों का हाई स्कूल है, सूरा नसीब गर्ल्स हाई स्कूल। मेरी माँ वहाँ पढ़ती। साधु सुंदर सिंह कुछ महीने 2 के बाद वहाँ लड़कियों के स्कूल में मुनादी करने गए। उस भीड़ में मेरी माँ भी थी, लड़की थी और सिख थी, याद है। मेरी माँ का नाम लाजवती है। वो तो बाद में हमने उसका नाम खुर्शीद रख दिया, कभी कुछ रख दिया, कभी कुछ। उनका नाम लाजवती है और आज भी मैं इसको भी कभी कभी लाजवती कहता हूँ, मन्नू को भी कभी कभी लाजवती कहता हूँ। अब वो वहाँ लाजवती, वहाँ जब उसकी जिंदगी में खुदा के कलाम की तलवार साधु जी के जरिए चली तो उसने सिख मजहब को छोड़ दिया। उसको भी मिशनरियों ने पकड़ा और दोनों को कसूर शहर में लाके छुपा दिया। बड़ा अरसा छुपे रहे, फिर पाकिस्तान बन गया। फिर पाकिस्तान बनने के बाद भी छुपे रहे। फिर मिशनरीज ने डॉक्टर एफ.बी. llewellyn, फ्रैंक बी llewellyn, मेरा बपतिस्मा डॉक्टर एफ.बी. llewellyn ने किया है और बेबल का भी फ्रैंक बी llewellyn ने किया था, मेरी छोटी बहन। फिर वो अमेरिका चले गए तो 80-90 साल के हो गए। उन्होंने उन दोनों की शादी की। मैं गोद में था, ये तो फिर बड़ी हो गई, इतना सा था शायद, इससे भी छोटा था जब मेरे माँ बाप को उन्होंने गुजरने वाले सब मिले। बताना ये है कि उनकी जिंदगी में साधु जी के जरिए खुदा ने तलवार चलाई और वो ईमानदार होने की हैसियत से दुनिया से है। आपने मेरे मुंह से कई दफा पादरी बरकतुल्लाह का नाम सुना है ना। पादरी बरकतुल्लाह भी बड़े कट्टर मुसलमान थे, खुशी हो गए और पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान दुनिया में वो यीशु के बहुत बड़े कादिर बने और कई किताबें उन्होंने लिखी। आप ये जो ज़बूर गाते हैं, आपको पता है ये तर्जुमा किन्होंने किया है? आई.डी. शहबाज साहब। आई.डी. शहबाज साहब। आई.डी. शहबाज का क्या मतलब? शहबाज तो उनका तखल्लुस है। आई.डी. का क्या मतलब है? अल्लाह का। वो उन्होंने उस वक्त ये ज़बूरों का तर्जुमा किया जब वो खिदमत करते 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 आंखों से अंधे हो गए। उन्होंने जवानी में शायद इन बच्चों की तरह, इस लड़के की तरह, राइन की तरह थे जब उन्होंने यीशु को कबूल किया। खुदा के कलाम की तलवार चली तो मसीह हो गए। अगर पादरी बरकतुल्लाह की आप किताब पढ़े या रसूलों के नक्शे कदम पर ये इसको पढ़े या सलीब के हरावल पढ़े तो आपको पता चलेगा कि नारोवाल सियालकोट के इलाके में एक बंदा था, उसका नाम दाता था। उस वो चूड़ा था और वो उसने कहा मुझे हमेशा दात चूड़ा दिखा जाए। आज भी किताबों में उसको दात चूड़ा दिखा जाता है। वो कहता है खुदा यीशु के कलाम ने मुझे इस चूड़पन से छुड़ाया और आज मैं खुदा का खादम हूँ और उसके वसीले से नारोवाल के जितने इलाके हैं वो सब मसीही हैं। तूमा को खुदा ने कहा, शागिर्दों ने कहा कि आज यीशु आए थे, उन्होंने कहा मैंने मांगा, मैं तेरा 5,000 मांगा जो थे। यीशु ज़ाहिर हो गया। उसने कहा तूमा लाओ अपना हाथ बढ़ा। अगर आप यूहन्ना की इंजील पढ़े तो वहाँ लिखा है आप अपना हाथ बढ़ाओ और इन जख्मों में उंगलियाँ डालकर देख ले। उसने उंगलियाँ नहीं डाली, बस उसने यीशु की तरफ देखा और वहाँ जो आयत है मुझे है आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा। फिर वो यरूशलेम से उसको 30 रुपयों में इतराजान ने खरीदा। फिर वो चलता चलता टैक्स ले आ गया, टैक्स ले रहा। फिर जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, फिर इमनाबाद, फिर गुजरांवाला, इधर से होता हुआ जनूबी हिंदुस्तान चला गया। ये पंचनाथ सिंध से गुजरा,
जहाँ से गुजर कर जनूबी हिंदुस्तान में उसको मालापुर के मुकाम पर शहीद कर दिया गया। पर इन सारी जगहों पर लोगों ने उनकी जिंदगियों में खुदा के कलाम की तलवार तूमा के जरिए चली। इंग्लिस्तान रेफॉर्मेशन के वक्त जब तहरीक चली, 80,000 मील सफर किया है विलियम कैरी ने घोड़े की पीठ पर बैठकर। उसके पास गाड़ी नहीं थी, मेरे जैसे घोड़े की पीठ पर बैठकर 80,000 मील सफर किया। और यूके जो है, ये यूके इसलिए है कि इसको 95% लोग उसके वसीले मसीह यीशु पर ईमान लाए और खुदा के कलाम की तलवार चली। आपके ये जो देहात है, HR126 होते हैं, आटूचाके होते हैं, यंगस्टराबाद है, मार्टनपुर है, ये सारे के सारे मिशनरियों की पैदावार है। और मैं FC कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ। FC कॉलेज का जो वादी था पादरी फोरमैन की लाश यहाँ से वापस गई। उसको मलेरिया हो गया था, उसका इलाज नहीं हुआ। जिस बंदे ने ये तर्जमा किया 1907 में, वो भी बीमार हो गया और वो उर्दू में था तो जाके मर गया यहाँ से तर्जमा करने के बाद। उन्होंने जाने दे दी इसलिए ताकि खुदा के कलाम की तलवार चले, और वो चली और आज मैं और आप जेल में टुकड़े पर देखे पर मसीही से है। ये उनके काम का नतीजा, ये उनके काम का नतीजा। इसलिए तो यीशु ने कहा, मैं शागिर्दों को बुलाया, लोगों को बताया कि वे दुनिया में सुलह करा दें, बदी की बदी से, चोर की चोर से, डाकू की डाकू से सुलह कराने नहीं आया। मैं रोमन्स की यहूदियों से सुलह कराने नहीं आया। मैं सामरियों की यहूदियों से सुलह कराने नहीं आया। मैं मुसलमानों की क्रिश्चियंस के साथ सुलह कराने नहीं आया। मैं ये कराने नहीं आया कि हम एक ही मुल्क में रहते हैं और हमारा ये है और हम वो है। मैं वो बात नहीं करना चाहता, आप सब जानते हैं। वो तलवार चलाने आया है खुदा के कलाम की, और किनके जरिए? आपके जरिए, आपके बच्चों के जरिए, पासवानों के जरिए, ईमानदारों के जरिए, बेटियों के जरिए, बेटों के जरिए। मेरी एक टीचर थी, उनका अब्बा जी ने उसको, छोटी सी थी, इतनी सी होगी, तो अब्बा जी ने उसको गांव से लिया। ताज निज़ामुद्दीन की बड़ी बहन मिस्र निज़ामुद्दीन, ताज निज़ामुद्दीन मेरा दोस्त था। अब्बा जी ने उसको लिया, छोटी सी थी, रात को उसको स्कूल में डाला, मैट्रिक करवाई, बाद में टीचर बन गई। तो जब जवान थी तो फिर तो रिश्ते भी आते होंगे, तब उसने शादी नहीं की। तो जब वो 40 की या 35 की या 40 की या 50 की हो गई, तो फिर उसने ऐलान कर दिया कि मेहरबानी करके मेरी शादी का कभी जिक्र किया जाए। इसलिए कि मैंने अपना आप खुदावंद को दे दिया। और मेरे को तो टीचर भी थी और संडे स्कूल टीचर भी थी। मार्जी बड़ा थी लेकिन वो मेरी टीचर थी, मेरी बहनों की टीचर थी। तो मैं इतने लोगों को जानता हूँ। और डॉक्टर KL नासर, वो कुंदन लाल नासर है। KL से कुंदन लाल बनता है। वो चामड़ी था, शूद्र था। पादरी इकबाल साहब चामड़ी था, शूद्र था। डॉक्टर नज़ीर यूसुफ का बाप यूसुफ नाग कुलवान सी, चामड़ी सी, और वो मुजाहिदा साइसी। खुदावंद का कलाम उनकी ज़िंदगी में चला, वो तलवार चली, वो मसीही हो गए। अब डॉक्टर नासर का भी दुनिया में नाम है, इकबाल सार का भी नाम है, डॉक्टर नज़ीर यूसुफ का भी नाम है।
क्योंकि जब लोग यीशु में आते हैं उनकी कोई हैसियत नहीं होती, मती की कोई हैसियत नहीं, वो महसूस लेने वाला लाही है। जब यीशु में आ जाते हैं लोग, पहले वो नाम बदलता है। तो माहीगीर हो, क्या करूँगा? कीर बनाऊंगा। हूँ मछलियाँ पड़ रही है, फिर बंदे बढ़िया करोगे। और 12 लोगों ने इतनी मछलियाँ पकड़ी कि आज 184 बोटों में 40% लोग बचे हुए। कितने लोगों ने? 12 लोग। कितने लोगों ने? 12 लोगों ने। साढ़े हर गली से 5-7 कट बैठा करके नहीं साई मुना 12 लोगों ने खुदा के कलाम की तलवार चली और आज 140 मुल्कों में कितने फीसद मसीही हैं? 40। ये काम मेरा और आपका है। खुदा ने अगर आप किसी जगह, किसी मुकाम, किसी ड्यूटी पर, किसी जॉब पर तो खिदमत आपको दी है, आपसे ज़्यादा अच्छे लोग हैं, आपसे ज़्यादा अच्छे क्रिश्चियन हैं, आपसे ज़्यादा अच्छे टैलेंटेड क्रिश्चियन हैं, पर क्योंकि खुदा ने आपको ईमान की, खुदा के कलाम की तलवार दी, इसलिए अपने सारे काम करें, लेकिन अपनी ये ड्यूटी ना करें। खुदा मुझे और आपको खुदा के कलाम को तलवार चलाने और इसको सीखने का मौका अता करें और हम खुदा के खिदमत काम से, कलाम से, रवैये से, रिश्तों से, नाते से, अपने कारोबार से हर जगह हर वक्त तैयार